السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں تہہ دل سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے چینل پہ۔ اور آج ہم بیان کرنے والے ہیں حضرت خالد بن ولید کا واقعہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام سے قبل ہمیشہ مشرکین مکہ کے لشکر میں شامل رہتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف بڑی کارروائیوں میں مسوت رہے تھے، لیکن اب قبول اسلام کے بعد ان کے دل کی دنیا یکسر بدل چکی تھی۔ اب کفر و شرک اور مسلمانوں کے خلاف نفرت و عداوت کی بجائے ان کی زندگی کا قاہر گوشہ ایمان کے نور سے جگمگانے لگا تھا۔ اب اس نئی اور بدلی ہوئی زندگی میں ان کے قبول اسلام کے محض 2 ماہ بعد ہی قانون قدرت کے عین مطابق ایک بہت ہی بڑی آزمائش ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ہوا یہ کہ 6 ہجری میں مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے مابین صلح حدیبیہ کے نام سے جو مشہور تاریخی معاہدہ طے پایا تھا، اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو مشرکین مکہ کی جانب سے جب قدر بے فکری نصیب ہوئی تھی، تب اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کے اس مبارک سلسلے کو مزید وسعت دینے کا فیصلہ فرمایا تھا۔ اسی سلسلے میں ان دنوں مختلف فرما رواں حکمرانوں، امراء و سلاطین اور والیان ریاست کے نام خطوط ارسال کیے گئے تھے، جن میں انہیں دین برحق قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ اسی سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کی حیثیت سے حارث بن امیر الازدی رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ کے فرما رواں کے نام تحریر فرمودہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک لیے ہوئے جب مدینہ سے بصرہ کی جانب محو سفر تھے، تب راستے میں ملک شام کی حدود میں بلقا نامی ریاست جو کہ سلطنت روم کے تابع تھی کے فرمانروا شرحبیل غسانی نے انہیں روکا، تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر انتہائی سنگ دلی و صفاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے جکڑنے کے بعد انہیں قتل کر ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس افسوسناک واقعے کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رنجیدہ ہو گئے، کیونکہ کسی نہتے اور بے قصور انسان کو، بالخصوص غیر ملکی قاصد اور سفارتی نمائندے کو ناحق یوں قتل کر ڈالنا یقیناً بہت ہی بڑا جرم تھا۔ مزید یہ کہ یہ سفارتی آداب کی سنگین خلاف ورزی بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انتہائی افسوسناک بالکل واقعہ پیش آنے پر یہ فیصلہ فرمایا کہ اب رومیوں کے خلاف تادیبی کارروائی ضروری ہو چکی ہے۔ چنانچہ 3000 افراد پر مشتمل ایک لشکر سلطنت روم کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا اور یہ وصیت فرمائی کہ زید کے بعد سپہ سالاری کے فرائض جعفر بن ابی طالب انجام دیں گے اور ان کے بعد عبداللہ بن رواح جو کہ انصار مدینہ میں سے تھے انجام دیں گے، اور ان کے بعد باہم مشاورت کے بعد کسی کو سپہ سالار منتخب کر لیا جائے گا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو من جانب اللہ خبر دے دی گئی کہ اس موقع پر یہ تینوں حضرات یکے بعد دیگرے شہید ہو جائیں گے، اور پھر یہ لشکر حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر قیادت مدینہ منورہ سے سوئے منزل رواں ہو گیا۔ طویل مسافت طے کرنے کے بعد جب یہ مبارک لشکر جزیرۃ العرب اور سلطنت روم کے مابین سرحدی علاقے میں پہنچا تو وہاں موتا نامی مقام پر، جو کہ رفتہ رفتہ تقسیم در تقسیم کے
सिलसिलों के बाद मौजूदा उर्दन में वाक़ है। सूरत हाल जो नज़र आई वो नहायत खिलाफ़े तवक्को और इंतहाई परेशान कुन थी, क्योंकि वहाँ मंजर कुछ ऐसा था कि सामने रोमियों की 1 लाख फौज मुकाबले के लिए मौजूद थी। मजीद ये कि इस सरहदी इलाके में आबाद बहुत से अरब कबाइल कसान वगैरह जो दीनी मुआशी व सियासी तौर पर सल्तनत रूम ही के ताबे थी, उनके 1 लाख जंगजू भी यहाँ रूमी फौज के शाना बशाना मौजूद थे। यानी सूरत हाल ये बनी कि एक तरफ मुसलमान महज 3000 जबकि दूसरी जानिब उनके बिलमुकाबिल 2 लाख मसला और चाक व चौबंद जंगजुओं पर मुश्तमिल बहुत बड़ा लश्कर जरार। इस खिलाफ तवक्को सूरत हाल की वजह से मुसलमान कुछ तरद्दुद का शिकार हो गए। 2 रोज तक बाहम मुशावरत का सिलसिला चलता रहा। किसी ने कहा हमें अब मजीद पेश कदमी की बजाय यहीं रुक कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सूरत हाल से मुत्तला करना चाहिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इस बारे में किसी फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। किसी ने कहा हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये पैगाम भेजना चाहिए कि मज़ीद दस्ते इरसाल किए जाएं। इसी दौरान हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फैसला कुन अंदाज में मशवरा देते हुए कहा हमारे लिए नाकामी का कोई सवाल ही नहीं है। हमारे सामने तो दोनों ही सूरतों में कामयाबी ही कामयाबी है, या शहादत या फतह। लिहाजा इस तमाम तरद्दुद की क्या ज़रूरत है। चुनांचे सभी ने इस मशवरे को कबूल किया और इस पर अमल करते हुए दुश्मन की जानिब पेशकदमी शुरू कर दी। फरीक़ैन में कोई तवाज़ुन ही नहीं था। एक तरफ फ़कत 3000 मुसलमान और वो भी घर से बेघर, वतन से बहुत दूर, यहाँ दुश्मन की सरजमीन पर, जबकि दूसरी जानिब 2 लाख जंगजू खुद अपनी ही सरजमीन पर और अपने ही इलाके में। मगर इसके बावजूद दोनों जानिब से नहायत जोरदार यलगार हुई। ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निहायत बेजिगरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क़यादत संभाली। बेमिसाल शुजाअत व बहादुरी का मुजाहरा करते हुए दुश्मन की सफ़ों को चीरते हुए दूर अंदर तक चले गए। आखिर अल्लाह के दीन की सरबुलंदी की खातिर वहाँ परदेश में मोता के मैदान में उन्होंने भी अपनी जान का नजराना पेश किया और फिर यके बाद दीगरे उन दोनों अजीम तरीन और बहादुर सिपा सालारों के नक्शे कदम पर चलते हुए तीसरे सिपा सालार हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी वहाँ मोता के मकाम पर शहीद हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं तीनों बरगुज़ीदा शख्सियात को यके बाद दीगरे बितरतीब इस लश्कर का सिपा सालार मुकर्रर फरमाया था। लिहाजा अब इन तीनों की शहादत के बाद लश्कर में बहुत बड़ा खुलफा पैदा हो गया, जो कि इंतज़ामी लिहाज से यकीनन बहुत ही ख़तरनाक बात थी, बिलखुसूस इस कदर नाजुक तरीन सूरत हाल में कि जब जंग अपने पूरे उरूज पर थी और इस्लामी लश्कर इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल से दो चार था। यही वह इंतहाई अहम, बहुत ज़्यादा नाजुक और फैसला कुन मरहला था कि जब जल्द अज जल्द किसी मुनासिब सिपा सालार का इंतखाब अज हद ज़रूरी था। इस दौरान अंसार मदीना के ख़ानदान बनु अजलान से ताल्लुक़ रखने वाले साबित बिन अकरम नामी शख्स ने बर्क़ रफ्तारी के साथ लपक कर झंडा थाम लिया, जिस पर सभी लोग उसके इर्द गिर्द जमा होने लगे, गोया अब यही उनका नया सिपा सालार रहे। लेकिन वो शख्स कुछ देर दाएं बाएं निगाह दौड़ाने के बाद आखिर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुखातिब करते हुए बाआवाज़ बुलंद पुकारते हुए यूं कहने लगा,
जल्दी कीजिए खालिद, ये झंडा थाम लीजिए। लेकिन खालिद इस चीज़ के लिए कतई आमादा नहीं थे, क्योंकि वो तो अभी महज 2 माह कबल ही मुसलमान हुए थे, जबकि इस लश्कर में बड़ी तादाद में कदीम मुसलमान नेज़ मुहाजिरीन व अंसार में से अकाबिर सहाबा कराम मौजूद थे, बल्कि ऐसे हजरात भी थे जिन्हें हक व बातिल के दरमियान अव्वलीन मारका यानी ग़ज़वा बदर में शिरकत का अजीम शर्फ नसीब हुआ था। इससे भी बढ़कर ये कि खुद ये साबित बिन अकरम अजलानी, जो बड़े ही इसरार के साथ खालिद को झंडा थाम लेने की पेशकश कर रहे थे, ये खुद भी बदरी थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन। लिहाजा साबित बिन अकरम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से इस इसरार के जवाब में खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें जवाब देते हुए कहा, मैं ये झंडा नहीं थाम सकता, आप खुद इसके ज़्यादा हकदार हैं, क्योंकि आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, नेज़ कबूल इस्लाम में आपको मुझ पर शफ़क़त हासिल है, और सबसे अहम बात ये कि आप तो बदरी हैं। तब साबित बिन अकरम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी ही संजीदगी के साथ कतई और दो टोक अंदाज में कहा, खालिद अल्लाह की कसम, ये झंडा मैंने महज इसीलिए थामा था कि मैं इसे आपके हवाले कर सकूं। और फिर उन्होंने मजमा की जानिब इस्तफहामिया अंदाज में देखते हुए उन सभी से पूछा, आप सबको मंजूर है? जवाब में हर तरफ से यही सदा आई, मंजूर है। तब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे बढ़कर हज़रत साबित बिन अकरम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ से झंडा ले लिया और यूं इस्लामी लश्कर के सिपा सालार की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल ली। यही मौका था जब सल्तनत रूम के इस इलाके में यानी कि मोत्ता से तकरीबन 1500 मील के फासले पर मदीना मुनव्वरा में अल्लाह ताला की जानिब से बज़रिए वही अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरत हाल की इत्तला दी गई। जैसा कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में लोगों को ज़ैद, जाफ़र और इब्न रवाह की शहादत से आगाह किया, हालांकि उस वक्त तक किसी और ज़रिए से ये खबर मदीना नहीं पहुंची थी। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले ज़ैद ने झंडा थामा और वो शहीद हो गए, उनके बाद जाफ़र ने झंडा थामा और वो भी शहीद हो गए, और फिर इब्न रवाह ने झंडा थामा और वो भी शहीद हो गए। ये कहते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बहने लगे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब झंडा अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार ने थाम रखा है। तो मेरे भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफिज़।